चैनल्स के फीडबैक्स नहीं समझ आते हैं। TRPs, JRPs जो भी हैं वो सारा माल उसमें तोला जा रहा है। नंद और जलन ड्रामे का नाम नहीं हो सकता। ये कोई नाम है यार? सिर्फ नेगेटिव दिखाते रहोगे तो फिर सास पूरी दुनिया को नेगेटिव ही लगने लगेगी। मतलब इस तरह की भी कॉन्वर्सेशंस आई हैं कि 1 से लेके 21 तक का जो सीन है वो चैनल बता देता है, तो भाई चैनल लिख लेना फिर। 8 बजे वाले स्लॉट पे सास बहू, नंद भावच के झगड़े, बहनोई के साथ साली का अफेयर, ये चलना बहुत मस्त है। चैनल कहता है ऑडियंस तो उल्लू की पट्टी बैठी हुई है, वो तो मांगती यही है कि बहनोई और साली का अफेयर चल रहा है, आपको क्या पता। Hello, everyone, and welcome to this very, very exclusive new take. I am starting off, which is, a bit of a movement from behind the curtain to take two. मेरे सामने खास शख्स जो मौजूद है, एक खास खातून मौजूद है मेरे पास जो she has worked with me before and she's been part of Behind the Curtain in the first season, which apparently made it to Prime, and she was part of it, and I'm happy she gave me a chance. She does not need any introduction, but I would like to introduce the concept of Take Two. Basically, it's a process in which you might come across people who you have already seen on the show, people who are part of the industry, but there are things to add because जो discussion है entertainment industry पे या पाकिस्तान industry पे वो रुक नहीं सकता. It's going to be an ongoing process, and I think it's best to speak to professionals who are part of the industry, who are working in the industry, and who are coming across issues which might not be getting fixed, which might be getting fixed. So I would say that Asma Nabil has been a part of the industry for like good 17 years in the advertising medium. She's given her heart and soul. She is a cancer survivor, and very recently she's been diagnosed again, and she's going through another treatment. So that makes her even a bigger soldier as to what she's doing, because she's also gotten into her own company for television commercials, which I recently saw. So she's taken up on these amazing things. But मैंने उनको कांटेक्ट करने से पहले सोचा, मैंने पूछा कि will she be up for this again, and because I do understand this requires rigorous energy. I'll give a little bit of rerun. Asma has been part of the industry for a while. She's done numerous television commercials. She has a film to her credit. She has upcoming 2 other films to her credit as well, which she'll be working on, inshallah. And Khuda Mera Bhi Hai. I worked with her on Bandi as well. Surukh Chandni was there, Damsa was there, and I'm sure she has upcoming projects. I'm not seeing much of it at the moment. Khani became the stellar talk of the town with the ratings buster. No one can forget about it. And बस Asma जो है वो rise कर रही हैं. तो Asma, sorry मैंने ज़्यादा बात कर ली. कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और इतना इंट्रो ना, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ फ्रेंड, तो वो जरा ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस इंट्रो। थैंक यू राफिक। ये बताएं, how are you feeling? आई एम फीलिंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहा है ट्रीटमेंट। Okay, well, at any time if you feel uncomfortable or if it gets draining for you, we can always uh, cut the time out. अच्छा अस्मा, ये आपके साथ मेरा पहला सेशन हुआ था, and I think वो behind the curtain पे था. उसमें हमने काफ़ी बातें की थी कि being a writer, you started off your journey with, I think, सना शाहनवाज का प्रोडक्शन हाउस था, if I'm not wrong. खुदा मेरा भी है. And you gave her credit for it, and you said that she gave you a break and everything. You moved on to Khani, then with Seven Sky Productions. फिर आपने मेरे साथ काम किया, मूमल की तरफ पानी बनाया. फिर आपने वजाहत के साथ काम किया, दामसा. फिर आपने वापस you went to Sana's production of Soch Chandni. Now it brings me to a point which I want to ask you. You have bounced around production houses quite often. यहाँ पे हमारे पास इशू ये होता है कि जब आप एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस पे जाते हैं ना, तो आपकी लॉयल्टी को क्वेश्चन किया जाता है. ठीक है, मतलब कि इफ अस्मा इज राइटिंग फॉर मी एंड इफ यू डू नॉट गिव मी टाइम टुमारो, आई बी लाइक बस ठीक है, वो आपके नए दोस्त बन गए हैं तो बस आप उन्हीं के साथ काम कीजिए. या कोई नेटवर्क बोलेगा उसके लिए. तो आप मुझे बताएं कि आई मीन यू आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क. आई मीन इज इट वर्किंग आउट फॉर यू? I don't know if it's working out for me. So far, yes, it has worked out for me. But what you're saying is right, and it's kind of sad also.
बिकॉज़ आप क्रिएटिविटी को क्लैन्स में बंद नहीं कर सकते। सो जब मैंने इंडस्ट्री जॉइन की, तो मुझे ऑनेस्टली ये आइडिया नहीं था कि ये ऐसा होता होगा कि शायद कहीं एक जगह या मैक्सिमम 2 जगह रिस्ट्रिक्ट होके आप काम कर रहे हो। देन चाहे कॉन्ट्रैक्चुअली हम बाउंड होने की बात करें, अगेन मेबी दैट्स अ नॉर्म इन द इंडस्ट्री कि आप 5-5, 6-6 ड्रामे साइन करके प्रोडक्शन हाउसेस के साथ आप बाउंड हो जाते हैं। I can't work like that. I can't operate like that. Maybe it's about मेरा belief system and मेरा जो faith system है वो ये कहता है कि आपको अगले सेकंड का नहीं पता। आप 5 चीज़ों का किसी के साथ कमिटमेंट करके कैसे बैठ सकते हैं? उस 5 चीज़ों का एडवांस 50% भी अगर आप लेते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं? मेरा ज़मीर उस बात की इजाज़त नहीं देता। जिन लोगों का ज़मीर इजाज़त देता है वो फिर 2-2 साल के भी कमिटमेंट करके बैठे हुए होते हैं। लेकिन इन अ वे आई हैव एक्सपीरियंस्ड फ्यू थिंग्स जिससे मुझे ये लगा कि लोग अनकंफर्टेबल होते हैं कि आपने ये स्टोरी वहाँ क्यों दे दी और आपने ये स्टोरी यहाँ के लिए क्यों नहीं रखी, और अगर स्टोरी में यहाँ टाइम लग रहा था तो कोई बात नहीं, यहाँ के लिए वेट कर लिया जाता। सो ये रिस्ट्रिक्शंस और ये चीज़ें आपको एज अ राइटर मेरा ख्याल से प्रॉब्लम में डालती हैं, और इसीलिए आप देखें कि हमारे जो क्रिएटिव है ना, जितनी तरह के भी लोग, चाहे वो राइटर्स हैं, चाहे वो आई थिंक इवन एक्टर्स भी अगर मैं कहूँ, तो वो बड़े आपको डिस्ट्रीब्यूटेड और बड़ा क्लैन वाइज आपको प्लेस्ड नज़र आएँगे। कुछ पर्टिकुलर चेहरे पर्टिकुलर चैनल्स पे नज़र आ रहे होंगे। कुछ पर्टिकुलर राइटर्स कुछ पर्टिकुलर चैनल्स के लिए और फॉर दैट मैटर पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउसेस के लिए लिख रहे होंगे। सो आई डोंट नो, मेबी नहीं, आई थिंक 100% दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। बिकॉज़ सबको आई थिंक सारा फ्लेवर, सारा एक्सपीरियंस, इवन चैनल्स को हर तरह के राइटर का या एक्टर का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, इवन राइटर्स को हर तरह के चैनल का या प्रोडक्शन हाउस का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। लेकिन इस चीज़ पे कन्फाइन कर देना किसी को कि भाई इस क्लैन का हिस्सा बन जाओ और बस हमारे लिए पूरी ज़िंदगी लिखते रहो, दैट इज़ आई थिंक नॉट राइट। नहीं तो आपको किसी क्लैन ने बोला है कि आप दूसरे क्लैन्स छोड़े और हमारे क्लैन का हिस्सा बन जाएँ? बहुत सारे, वी ऑल नो द क्लैन्स इन द इंडस्ट्री। फ़र्ज़ करें कि अगर आपको ये जो पंजे आते हैं कि इसको उठा लो और आपको उठा लिया जाता है, तो फिर वो पंजे आपको इज़्ज़त देते हैं नए वाले चैनल में, प्रोडक्शन हाउस में? वहाँ पे भी आपके साथ एक नया किस्म का एक पैंडोराज़ बॉक्स खुलता है कि हाउ टू राइट, हाउ टू गो अबाउट थिंग्स? मुझे प्रोडक्शन हाउसेस से टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं मसला हुआ। तो कहाँ से अ, मसला? जितने प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया, बिकॉज़ हैंडफुल आपने अभी गिनवा दिए हैं सारे। हुँ, चाहे वो मैंने फ़ानी लिखा या खुदा मेरा भी है लिखा या सुर चांदनी लिखा या फॉर दैट मैटर बांदी लिखा। प्रोडक्शन हाउसेस का से हमेशा इज़्ज़त मिली है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, ओके, ओके। चैनल्स चैनल्स पे बड़े मसाइल हैं यार। अम, चैनल्स के फीडबैक्स नहीं समझ आते हैं। टीआरपीज़, जीआरपीज़ जो भी हैं वो सारा सारा माल उसमें तोला जा रहा है। और ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी को ना यूँ तराजू में डाल के तोल रहे हैं कि ये डाला और कितनी टीआरपी आएगी, क्या होगा, कितना मसाला डालेंगे तो इतने टीआरपी का वज़न बढ़ जाएगा या वज़न बैलेंस हो जाएगा। एवरी चैनल इज़ ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन। इट्स अ गुड थॉट, स्क्रीन को अपनी मेंटेन करना इज़ वेरी गुड, बट उस स्क्रीन के अंदर 3 चैनल्स पे 3 डिफरेंट ड्रामे आप नाम उठा के देखें और आप उनको अंदर से, मतलब पैकेजिंग फ़र्क है अपने चैनल के हिसाब से, कहानी अंदर वही है। हुँ, इज़ इट फेयर? और कह के लिखवाया जाता है। अम, फिर उस पे डिबेट्स भी होती हैं, फिर उस पे चैनल्स वाले, मैं आजकल देख रही हूँ, आजकल तो सोशल मीडिया का बड़ा दौर है। हुँ। सो चैनल्स वाले बड़ा जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को कि अच्छा। ये तो हमने नहीं डाला, ये तो इस तरह डल गया है, ये तो यूँ हो गया। सो नाम आप ड्रामों को देख लो, राफ़े, मतलब शैलोनेस की हद आपको नामों से मिल जाएगी। ऐसी चीज़ें देख के फिर आपको लगता है कि maybe you cannot become a part of any clan maybe, because with all due respect, नंद और जलन ड्रामे का नाम नहीं हो सकता। you know ये कोई नाम है यार? इट्स अ जोक ऑनेस्टली। एंड अगेन नंद, कल को जादूगर सास एक ड्रामे का नाम आ जाएगा। Why are you tagging the relationships all the time in a negative? पाकीज़ा पुप्पो, काफ़ी उसपे बातें बनी और वो हुआ कि जी फुप्पो कैसे पाकीज़ा हो सकती है, बिकॉज़ आपने फुप्पो के रिलेशनशिप को इतना गंद बना दिया है इन योर ड्रामास कि मैं अपने भाई के बच्चे जब मुझे फुप्पो कह रहे होते हैं तो मैं सोच रही होती हूँ कि फुप्पो
you're tagging your relationships in a bad way. You know, I always say that, and this is my fight with everyone. When I write a drama, for instance, एक ड्रामे में अगर मैंने कोई बहुत पॉजिटिव सास लिख दी, तो मुझे ये सुनने को मिला कि आपकी सास तो बहुत पॉजिटिव है। ऐसा यू नो ड्रामे में ये सास है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव भी होती होंगी, बट पॉजिटिव भी तो हैं यार दुनिया के अंदर। सिर्फ नेगेटिव, 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 नेगेटिव दिखाते रहोगे तो फिर सास पूरी दुनिया को नेगेटिव ही लगने लगेगी। कभी तो एक पॉजिटिव सास भी दिखा दो, क्योंकि सास बहू भी आपस में बैठ के ड्रामा साथ देख रही होती हैं एंड समटाइम्स इट बिकम्स रियली ऑकवर्ड। एंड पता है सासें बहुत देख रही होती हैं ड्रामे, बड़ी एज की खवातीन बहुत देख रही होती हैं। उनके साथ सोचो एक यंग बहू बैठी हुई हो, उनके घर में ना भी कोई प्रॉब्लम हो ना, और वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, यू ब्रिंग देम इन अ वेरी ऑकवर्ड जोन। आप ना चाहते हुए ये चीज सीप इन किए जा रहे हैं लोगों के दिमाग में कि सास बुरी है, अब वो नंद एक ड्रामा आ गया है। इट्स मतलब इतने बुरे हालात हो गए हमारे कि हम नंद और इस तरह के नाम रखे हैं, पाकीज़ा फूफू, ये कोई नाम है यार? इट्स काइंड ऑफ सैड। मुझे ये लगता है कि हमारा एक ज़माना था जिस ज़माने में ठीक है हम कहते हैं कि जी वो ज़माना था, हसीना आपा का ज़माना था, अमजद साहब थे, मतलब नाम थे बड़े-बड़े आपके, वो लिखते थे, एक कोई चीज़ आती थी, फिर हमें ये सुनने को कहा जाता है चैनल्स की तरफ से कि जी वो तो ज़माना और था। आप तो आज के ज़माने की बात कर रहे हैं। तो आज के ज़माने में तो आप उस ज़माने से भी बदतर ज़ोन में चले गए हैं जहाँ आप नंद जैसे ड्रामे बना रहे हैं। यू नो इट्स आई एम सॉरी जिन्होंने नन लिखा होगा वो बहुत ऑफेंड शायद हो ये बात करके, बट ऑनेस्टली देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट टू द राइटर दैट हैज रिटन द ड्रामा, यू नो। एंड ऑनेस्टली मैं ये सब राइटर्स के बिहाफ पे बात कर रही हूँ कि जब आप राइटर्स इकट्ठे होकर बैठते हैं, ऑल द राइटर्स हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू ओनली कि वी आर बीइंग फोर्स्ड टू डू थिंग्स, कि हम ये लिख दें और ये लिख दें। मतलब इस तरह की भी कॉन्वर्सेशंस आई हैं कि 1 से लेके 21 तक का जो सीन है वो चैनल बता देता है, तो भाई चैनल लिख लेना फिर। हमारी क्या ज़रूरत है यार? No, but Asma, I mean, right now, post Damsa, I mean, are you working on something? Are you, or have you decided to? I mean, with your tone, I think that you sound very irritated with the current phenomena. Have you experienced something very recently कि आप बोल रही हैं कि यार this is not for me? Very selective things. I think I have 2 चीज़ें हैं सब मेरी प्लेट में in terms of drama. Yes, I'm doing few things on digital. Actually डिजिटल की 3 से 4 चीज़ें हैं जो आई एम ऑन इट राइट नाउ ऑन डिफरेंट लेवल्स। बट ड्रामे अभी 2 ही हैं कुछ पाइपलाइन में। एक का अभी मैं मुकद्दर देखूँगी कि क्या है, क्योंकि वो मेरा बहुत पैशन प्रोजेक्ट है, बट आई डोंट नो वो क्या होगा बिकॉज़ इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। सो देयर इज़ अ प्रोडक्शन हाउस इन्वॉल्व्ड इन इट, बट इवन दे आर आल्सो थिंकिंग कि क्या ये कोई चैनल लेगा या नहीं लेगा। सो इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज सिनेरियो। Okay. सेकंड ड्रामा मैं एक और प्रोडक्शन हाउस के साथ कर रही हूँ। बस 2 ही हैं जो अभी मैं लिख रही हूँ। एक तो मैं लिख चुकी हूँ, एक एक्चुअली मैं अभी लिख रही हूँ। लेकिन जो आप कह रहे हो आई थिंक दैट्स अ फैक्ट बिकॉज़ जो टॉपिक्स शायद इस वक़्त चैनल को चाहिए हैं, वो टॉपिक्स मैं लिख ही नहीं सकती। सो मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन, या फिर ये कह लें कि चैनल्स शायद ये कहें कि जी पता नहीं खातून को लिखना भी आता है कि नहीं। Have you heard that? या I've heard खानी और खानी खुदा मेरा भी है बांदी ये सब जो रेटिंग्स वाले ड्रामे आए ये आपको लिखना नहीं आता है अब आप लिखना भूल गए हैं ये बेसिकली पानी के टाइम के इर्द-गिर्द से पहले और उसके बाद भी इवन जो है, बिकॉज़ वो थोड़ा-सा एक वो होता है कि इन एक फ़ील आती है लोगों को कि इनको क्या पता कि आम आवाम क्या माँगती है। मेरे से आज भी कोई सवाल करता है कि आप अगर 1 टू 5 अगर रेट करें, तो खुदा मेरा भी है, खानी भी है, बांदी है, दमसा है, सुर्ख चांदनी है, किसको करेंगी? मैं कहती हूँ कि यार दे ऑल आर सच क्रिटिकल टॉपिक्स एंड हर एक का इमोशनल एक अलग एंगल है। खुदा मेरा भी है मेरा पहला ड्रामा था एंड बड़ा उस वक़्त मैंने इश्यू फेस किया था। बहुत इश्यू फेस किया था एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सना फॉर दैट बिकॉज़ उसने वो स्टेप लिया एंड फिर वो चीज़ें आई, वो जिस तरह से बना, वो जिस तरह से गया, वी ऑल नो किस तरह से हुआ। फिर यू नो इम्पोर्टेंट टॉपिक के आपके शोज़ बनते हैं, ड्रामे बनते हैं, अ, वो 9 बजे वाले स्लॉट पे चले जाते हैं। सो क्योंकि 8 बजे वाले स्लॉट पे सास-बहू, नंद-भावच के झगड़े, बहनोई के साथ साली का अफेयर, ये चलना बहुत मस्ट है।
बट वो आपने कल पढ़ा ना, पेमरा ने रिलीज कर दिया कि इस तरह के ड्रामे जो होंगे वो हम नहीं चलने देंगे, रीरन्स बैन कर देंगे. सो डू यू थिंक दैट्स अ गुड साइन फॉर द इंडस्ट्री राइट नाउ? एंड द सेम राइटर्स हैव कम फॉरवर्ड सेइंग दैट यू कांट बैन कंटेंट, you can suggest changes. So do you think that someone is listening? नो, बिकॉज बात वो ये ना कि अगर बैन करने की सब बात है, इसीलिए सब कह रहे हैं कि मत बैन करें, क्योंकि चल ही सिर्फ ये रहा है. तो सब ड्रामे बैन हो जाएंगे सर, टेक्निकली आपके साथ हाँ, लॉस हो जाएगा. लॉस हो जाएगा बहुत ज्यादा. तो उस पे अब हर बंदा बोलेगा और जस्टिफाई करेगा अपने कंटेंट को. और फिर ये भी जस्टिफिकेशन है कि जी सोसाइटी में हो रहा है. मैं मान रही हूँ, मैं भी वही दिखा रही हूँ जो सोसाइटी में हो रहा है. सुर्ख चांदनी की चीजें हमारी सोसाइटी में हो रही हैं. खानी जो था वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा था. खुदा मेरा भी है, आज भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है. यू नो, इट इज नॉट समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू डू अ शिकायत थ्रू दिस प्लेटफॉर्म. कि बहुत सारे लोग हो सकता है इस बात पे भी इतराज करें कि ओ राफे के शो में आके 9 बजे की इन्होंने शिकायत लगाई है. बट पॉइंट ये है कि ये शिकायत नहीं है, ये ओवरऑल एक आई थिंक माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है. 1 से 2 दिन तो कुछ जरूरी बातों को दे दें 8 बजे के स्लॉट पे. चले ना आए टीआरपी आपकी जीआरपी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रेटिंग नीचे आ जाएगी. इश्तहार तो मिल जाएंगे आपको, इश्तहार मिल जाते हैं चैनल को. मैंने पूरी जिंदगी एडवर्टाइजिंग में काम किया. कोई ये एडवर्टाइजिंग के 18 साल और उसके बाद 6 साल ही मिला के 22 से 23 साल कभी इश्तहार रुके किसी स्लॉट के अंदर? कभी अप नहीं. एंड कोई 10% कम हो गया, कोई कोविड की वजह से अभी आपकी परसेंटेजेस एडवर्टाइजिंग की कम हो गई. दैट्स अंडरस्टैंडेबल. राइटर्स जो आपने बात की, जो राइटर्स कहते हैं दूसरे को फेड आउट हो जाएं आप, सही है. तो मुझे तो इतना पता है बाय एक्सपीरियंस दैट राइटर्स में कोई यूनिटी नहीं है इन द इंडस्ट्री. और अक्सर हम वी आर नॉट वर्किंग ऑन मेकिंग अ गिल्ड. सो एवरीवन वुड लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि एक राइटर अगर उरूज पे जा रही है तो उसको नीचे खींचे. सो आर यू श्योर व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इज गोइंग टू बी हर्ड और विल मेक अ डिफरेंस, या you I feel I have nothing to win, I have nothing to lose, because मैं winning and losing की गेम करने आई नहीं हूँ. मैं इस राइटिंग के दौर में तब आई. पहले मैं एडवर्टाइजिंग कर रही थी. मैं बहुत आम सा इंसान थी रफे. एडवर्टाइजिंग करती थी, अच्छे अच्छे इश्तहार बनाती थी. आपके दिल में हमारा अकाउंट, मेरी लाइन, तुम में है कुछ खास, एवरीडे मेरी लाइन. बड़ा खुश होते थे हम ये करके काम. बड़े बड़े इश्तहार, जितने की हमारी पीछे फिल्म बनती है आज से 9 साल पहले मैं उस बजट के कमर्शियल्स बनाया करती थी. एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू अल्लाह दैट आफ्टर माई फर्स्ट ट्रीटमेंट Allah gave me the opportunity to live a meaningful life. And उस meaningful life में पहली कहानी लिखी खुदा मेरा भी है. ये मेरे कैंसर डेज की बात है. मैं लेटी हुई थी, मैंने कहा यार दोस्त कहते हैं कुछ लिखो, एक वन लाइनर लिखती हूँ. मैंने जिंदगी में कभी वन लाइनर नहीं लिखा था. The first one liner, I was coming back from the hospital that day, अपनी कीमो करवा के. So एक दो हिजड़े आके मेरे पास वहाँ खड़े हुए और उन्होंने तालियां वालियां बजाई. मैंने पैसे दिए and I just looked at them and there was a thought in my mind all of a sudden कि I should write something on them. कि अगर इस तरह का बच्चा एक आम घर में पैदा हो, अगर उसे एक्सेप्ट करें तो क्या वो इस सिग्नल पे खड़ा हुआ होगा? And that was the crux of the story. फिर वो स्टोरी लेके मैं 4 साल, तकरीबन 5 साल में घूमती रही मार्केट में, नहीं कुछ हुआ था. सो उस टाइम पे उस स्टोरी का आना, अल्लाह वांटेड मी टू राइट दैट, कि डू समथिंग फॉर देम. खानी का आना, अगेन Allah wanted me to write that कि लड़कियों या फैमिलीज के साथ जो होता है ऐसी चीजों के बाद, give them some space कि ये खड़ा होना जरूरी है. Empowerment of Khani, she was not a simple girl of the society, and you still need so many stories like Khani जहाँ पे लड़कियां अपने पैर पे खड़े होके आएंगी और कोई आके मीर हादी जैसा सामने खड़ा हो तो सीना तान के कहेंगी कि ठीक है भाई, जो करना है कर लो, मारनी है गोली मारो, बट वी विल टेक अ स्टैंड अगेंस्ट यू. अच्छा अस्मा, ये तो आपने जो बातें की काफ़ी खरी, काफ़ी मतलब कि हार्ड कोर बातें की हैं. एंड आई एम श्योर दिस विल रीच आउट टू लॉट्स ऑफ पीपल बिकॉज यू एक्चुअली टेकन नेम्स. देखिए, बीटीसी का फोकस होता था हमेशा दैट वी यूज्ड टू पॉइंट आउट द इश्यूज एंड टॉक अबाउट दिस वाज व्हाट एग्जिस्ट्स. I also want you to tell me that if you have experienced all of this and you're coming with a lot of, how do we fix this? That's the whole point. In ये लिखा हुआ जाएगा कि आपने अपने तरफ से बात की थी सोल्यूशन की, ऐसे नहीं आपने कहा कि इश्यूज थे. So that's the whole point of take 2 is that today if you are to solve this issue,
how would you go around solving this crisis for yourself and anyone else? देखो, इसके मुझे 2 पर्सपेक्टिव नज़र आते हैं। जहाँ तक आपने यूनिटी, मैं पहला एंगल आती हूँ यूनिटी का। तो आपने कहा ना कि मैं राइटर्स के बिहाफ पे बात करती हूँ, जैसे आप कहते हैं ना कि राइटर्स में यूनिटी नहीं। मैं इस बात को डिफरेंट तरह से मानती हूँ। यूनिटी का चक्कर नहीं। आई थिंक जब हम सब बैठते हैं, हमारे ग्रीवेंसेस सेम होते हैं, हमारे प्रॉब्लम सेम होते हैं, हमारी ज़बान सेम होती है। मैंने जो बात की, हमारे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, और इसलिए मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूँगी और मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी यूनिटी नहीं है। हर इंसान की नीड्स फ़र्क हैं, हर इंसान की रिक्वायरमेंट्स फ़र्क हैं। मेरा शायद लेवल ऑफ वर्क इस लेवल पे डिफरेंट है। एक औरत अगर राइटर है, या मर्द फॉर दैट मैटर अगर राइटर है, और उसका ब्रेड एंड बटर है राफ़े ये, सो वो 2 चीज़ों पे पंगा डालेगा, तीसरे चीज़ पे वो उसे गिव अप करना पड़ेगा, बिकॉज़ उसका प्रोफ़ेशन भी यही है और उसका पैशन भी यही है। यू नो मेरा फ़िलहाल सिर्फ़ पैशन ये है, मैं इसको प्रोफ़ेशन नहीं देखती हूँ, मैं इसको पैशन देखती हूँ। सो हम भाग-दौड़ में लगे रहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा है, वो हमारा है। सो एक लिमिट तक आप उस चीज़ की भाग-दौड़ करते हैं, और जहाँ आपको लगे कि यार ये मेरी सेंस से, मेरी औकात से, मेरी बिसात से ऊपर हो रही है चीज़, और मेरा दिल नहीं मान रहा है करने को, छोड़ दो। अल्लाह उससे बहुत बेहतर चीज़ तुम्हारे सामने ला के रखेगा। सो दिस इज़ वन सॉल्यूशन दैट आई फील। मे बी पीपल विल से कि पागल हो गई, ये कैसी बातें कर रही थी आगे राफ़ी के शो में, इसको कीमो लगी हुई है, शी इज़ इन दैट ज़ोन राइट नाउ। सेकंड, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ, अगर हम चैनल्स की या उसकी बात करते हैं, भाई मैं हर जगह ये बात करती हूँ कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना यार, 2 दिन कोई स्लॉट 8 बजे वाला ऐसा रख लें जिसमें आप हमारे जैसे पागल राइटरों के कुछ इशू रिलेटेड चीज़ें चला दें, जो बातें हम कहना चाह रहे हैं वो कहलवा दें। 2 स्लॉट यार, 5 दिन आपकी टीआरपीज़, जीआरपीज़, भाभी, सास, ससुर, बहनोई अफेयर, अगर पैमरा ने बैन ना किया तो, क्योंकि नहीं होगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। That's something I feel के है, and yeah, channels need to stop undermining the level of the audience. उनको लग रहा है कि ऑडियंस ना लेवल खाली है। They talk about TRPs, they talk about GRPs, they talk about people's meter. लगे हुए होते हैं ना लोगों के घर में। किन घरों में लगे हुए हैं? कितने घरों में लगे हुए हैं? क्या वो इतना सा सैंपल पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगेन आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस जो छोटी-मोटी है, जबकि मेरा मीडिया से बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग में भी लिंक नहीं था। बट पीपल्स मीटर का अपना एक सिस्टम है, एक यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स के अंदर से आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो कितनी सही, कितनी गलत, और वही बात है, आप दिखाए चले जा रहे हैं, दिखाए चले जा रहे हैं, दिखाए चले जा रहे हैं। अब उन औरतों को, बेचारियों को कोई ऑप्शन नहीं है ना। अभी ये डिजिटल ऑप्शंस अगर खुलने शुरू हो गए, अभी कुछ नए ऑप्शंस आए हैं, ₹250 महीने पे ऑप्शन है वो सब, ठीक है? And we all know that. Yep. All have seen the level of content जो हम सब ने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ राइटर्स, डायरेक्टर्स या लोगों के पास दिमाग नहीं है, या हम वैसा काम नहीं कर सकते, या हम वो प्रोडक्शन वैल्यूज नहीं दे सकते। हम सब कर सकते हैं, हमें चैनल ही नहीं करने देते। चैनल कहता है ऑडियंस तो उल्लू की पट्टी बैठी हुई है, वो तो मांगती यही है कि बहनोई और साली का अफेयर चल रहा है। आपको क्या पता? आप अपने ब्रिज के उस पार से निकलें तो आपको पता चले। सो ये है, चैनल्स को सोचना पड़ेगा। The only issue is, I think, channel. The only, I think, supreme power right now is the channel. And we are all the puppets in their hands. कुछ की strings बड़ी solid उनके साथ अटकी हुई हैं, and they're just playing. हमारे जैसे कहते हैं कि भाई छोड़ो हमें, जब होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा, it's okay. I know you're a very rebellious writer, and I know you always don't take it light to criticism that comes your way. I know you have had the thing to walk out of rooms. I know you've had the thing to walk out of projects if it has not come to the terms, and I think you deserve and
मच मोर बेटर प्लेटफॉर्म्स। मुझे लगता है कि जहाँ पे आपकी आवाज़ है वो ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। चैनल्स की मजबूरी है, चैनल्स को अपना काम करना है, और मेरे ख्याल से अब जो है ये देखिए सास बहू ये सब तो मैं इसके बारे में इतने टाइम से बात कर रहा हूँ कि मुझे भी वॉक अवे करना पड़ा व्हाटएवर आई वाज डूइंग। बट वी होप के वी कम टुवर्ड्स द चेंज, एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ making professionals like you come talk. I think we can come to a close now because lots of things you've come said will make a lot of difference, and I hope I was able to ask the right questions from your end, because जो धड़ों वाली आपने बात की ना वो बड़ी true है, and I'm glad that you were the first person to come on and accept and admit कि there are धड़ास, there are all these borders, the writers are एक राइटर एक के लिए काम करे दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता, करेगा तो केसेस हो जाएंगे, करेंगे तो कोर्ट में चले जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ये वो, it's difficult to think outside the box. And I hope your voice reaches out with reason to the right people, at least with the people who write content. They should be an awakening. So, Asma, thank you for that. Thank you for this amazing session. Thank you for taking our time, because I know I bug you a lot and बहुत तंग करता हूँ मैं आपको, लेकिन तंग अभी बहुत तंग करना है मुझे, आपको इतना मुझे पता है. So, ये तो चलेगा. And I wish you the best of luck with your treatment. Inshallah, I'll be seeing you soon. I look forward to your projects and to your films. And thank you everyone for tuning in to an exclusive version of Take Two. And let's see if there'll be a time we'll have Take Three with Asma again. Thank you, Asma.